the sequel video of passive voice sentences. As I have told you earlier in my previous video that I will elaborate a new point in passive voice sentences, which is direct and indirect object, and you can say a sentence with double object. When a subject has two objects, double objects mean when a subject when a sentence has two objects, it can be changed into passive voice form in two ways. Double objects, first object will be indirect object and the second object will be termed as direct object. Keep in mind, when I am talking over here about the two objects in a same sentence, without the use of comma. There is no comma in a sentence with double object. See the examples. I give her a gift every year. I give her is also object. If I skip the rest of the sentence, I give every year, I will left with the sentence I give her. This is my complete sentence because I is subject, give is a verb, and the her is object. But you cannot ignore the rest of the sentence because this is also part of this sentence. And you can see that a gift is also object. Every year is a complete predicate. So I give her a gift. I give a gift. बेसिकली दिया क्या गया है, गिफ्ट दिया गया. डायरेक्ट, व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओवर हेयर, किसको दिया गया, उसको दिया गया. ठीक है, इसी वजह से जो अ गिफ्ट है ओवर हेयर इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड हर इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आई गिव हर अ गिफ्ट एवरी ईयर. अब बेसिकली तो कहा जाता है कि इन सेंटेंसेस को जब एक सेंटेंस में दो वर्ब्स हमारे पास, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ जाते हैं, तो हम इसको दो तरीकों से दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के तौर पे रख के यूज कर सकते हैं और मतलब कि बन जाता है पैसिव इसका. जैसे कि a gift is given to her by me every year, और she, when we have object form in a sentence, so we will use subjective form of her. She is given a gift by me every year. This is the two ways of a sentence to change it in passive voice form when it has two or double objects, which is direct and indirect objects. See the more examples for you to elaborate the same concept. See the active voice. He tells her a lie. A lie is direct object. So this sentence can be changed into passive voice in two forms, through indirect object and through a direct object. First we will do it with direct object. Direct object becomes subject. A lie is a particle used with lie. So this whole a lie is becoming over here as object. A lie is singular, that is why we are using over here is. A lie is told, we all know that in passive voices whether which tense we are going to do, we always use third form of sentence, third form of verb, and you can say past participle. A lie is told to her by him, or now we are going to use this indirect object as our subject. Her becomes she is told a lie by him. The second one is they send him a parcel. Indirect object him, a parcel is direct object. A parcel is singular, that is why we are using over here is. A parcel is sent to him by them, or he is sent a parcel by them. It is said that they both are correct, but you must change a sentence into passive voice with direct object. It is pretty good for all of us. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ इसको पैसिव में चेंज करना, इसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि ये तरीका ज़्यादा बेहतर है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सामने रखकर, क्योंकि ही टेल्स अ लाई है
और डिसेंड अ पार्सल है, इस तरह के किसको दिया, ये बीच में हमारे इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन आपने इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे तो ठीक होगा। अब ये देखो कुछ एग्जांपल्स मैं दे रही हूँ फॉर यू टू व्हेन वी हैव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, माई फादर टेक्स मी टू द प्लेग्राउंड फॉर एंजॉयमेंट। माई फादर मुझे लेकर गए हैं कहाँ पर, प्लेग्राउंड। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई एम टेकन टू द प्लेग्राउंड फॉर एंजॉयमेंट बाय माई फादर। अब यहाँ पे हमने प्लेग्राउंड फॉर एंजॉयमेंट को यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये टू आ गया है यहाँ पर। पीछे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि टू जब यहाँ आ जाता है तो ये बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, इसलिए ये यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर नहीं यूज हो सकेगा। जैसे ही गोज टू स्कूल हमने किया था, स्कूल इज गोन बाय नहीं होता, ही गोज टू डिनर है तब भी ये नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन के तौर पर यूज हो रहा होता है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, इसी वजह से हम इसको पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि पैसिव में चेंज करेंगे लेकिन इसके थ्रू, प्लेग्राउंड के थ्रू नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हेन वी हैव ऑब्जेक्टिव फॉर्म इन एक्टिव वी विल यूज सब्जेक्टिव फॉर्म, व्हेन वी हैव सब्जेक्टिव फॉर्म वी विल यूज ओवर ऑब्जेक्टिव। माय फादर टेक्स मी, आई एम। अब यहाँ पर एम क्यों आया है आपको पता है, प्रेजेंट डेफिनेट कर रहे हैं तो उसके साथ आई के साथ एम आता है। आई एम टेकन टू द प्लेग्राउंड फॉर एंजॉयमेंट बाय माई फादर। बाय माई फादर, माई फादर यहाँ पर नाम ही दिया गया तो हम माई फादर ही लिखेंगे, बाय हिम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो भी नाम दिया जाता है उसको ही चेंज कर, वो एज इट इज आ जाता है, और जब हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउंस होते हैं तो हम उसको फिर चेंज करते हैं। द सेकेंड इज माई डॉग डज नॉट ईट कैरेट्स ऑफ द रोड। ये ऑफ द रोड डबल एफ वाला था। माई डॉग डज नॉट ईट कैरेट्स ऑफ द रोड। अब इसी तरह ऑफ द रोड जो है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, इसलिए हम इसे कैरेट्स के थ्रू करेंगे। कैरेट्स प्लूरल है इसीलिए आ रहा है द कैरेट, सॉरी द मैंने बोल दिया, दा नहीं लगाना क्योंकि यहाँ कैरेट्स के साथ दा नहीं है। कैरेट्स आर नॉट ईटन बाय माई डॉग ऑफ द रोड। होपफुली इट विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखते हैं कुछ सेंटेंसेस और फिर कुछ आपके सामने ही बनाऊंगी मैं। Aliyah sings a song in front of the jury. Again, object of preposition. That is why our object will be a song. A song is sung by Aliyah in front of the jury. ये तो आप सबको पता है, नाम जब भी आता है किसी भी नाम के साथ दा नहीं लगाते। ठीक है, you present him a gift. Him is indirect object, a gift is direct object. That is why I change this sentence according to direct object. A gift is presented to him by you. ये जब to him जेन में रख लें, अब presented him नहीं आएगा, इस तरह इसको to के साथ ही चेंज करना पड़ेगा। और you है, you की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी you ही होती है। ठीक है, इसलिए ये you ही आएगा। Does my brother tease me in front of my family? ये again preposition, object of preposition है। Does my brother tease me? क्या मेरा भाई मुझे टीज करता है। अब does आया है my brother के लिए, अब हमने me को यूज करना है एंड सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, दैट इज वाई me के साथ अभी हमने पढ़ा पीछे, ये देखें यहाँ पर कि m जहाँ पे आएगा, I जहाँ पर आएगा वहाँ पे m आएगा, तो इसी तरह me है तो m आएगा, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव इसलिए हम m स्टार्ट पे लेके जा रहे हैं। am I teased by my brother in front of my family? क्लियर हो गया। अब चलते हैं कुछ सेंटेंसेस जो आपके सामने ही मैं पैसिव में चेंज करूंगी फॉर एलेबोरेशन। फर्स्ट वन इज टू रन दिस फैक्ट्री। चेंज करते हैं इसको पैसिव में, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको कैसे करते हैं ताकि अच्छा सा एलैबोरेट हो जाए। यू रन दिस फैक्ट्री, ऑब्जेक्ट ओवर हियर इज दिस फैक्ट्री। दिस फैक्ट्री इस क्यों आया, क्योंकि फैक्ट्री सिंगुलर, इज रन बाय यू।
The next sentence is the goat does not eat grass. What is object? Grass. Grass singular है, is not हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है. The grass is not, क्या काम हुआ है? Eaten by the goat. Clear? Full stop. Grass is not eaten by the goat. अगर कोई गलती हो जाए तो ये आपका काम है मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनती है. नेक्स्ट सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव. डू दे रिमेंबर देयर ओल्ड सर्वेंट हु सर्व देम. क्या उन्हें अपना पुराना सर्वेंट क्या होगा? नौकर याद है जिसने उनकी खिदमत की. डू दे रिमेंबर देयर ओल्ड सर्वेंट. तो पहले तो कलर चूज कर लूँ. अब व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओवर हेयर? देयर ओल्ड सर्वेंट. उनका ओल्ड सर्वेंट. अब जो सर्वेंट है एक है, अब देयर समझ के ना समझ लेना ज़्यादा हो गया तो इसलिए सिंगुलर. देयर ओल्ड सर्वेंट इज सॉरी दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. डू दे, जो भूल ही गया, डू दे रिमेंबर देयर, तो इसलिए हम इज स्टार्ट में लगाएंगे. इज देयर ओल्ड सर्वेंट. थर्ड फॉर्म ऑफ रिमेंबर इज जी. रिमेंबर्ड बाय देम. बाकी जो हमारा सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लेकिन सेंटेंस में ये चीज़ें बच गई हैं तो ये हम एंड में एज इट इज लगा देंगे. हु सर्व्ड देम along with क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क बहुत ज़रूरी है. So the last one is interrogative and at the same time negative. Do I not read a story book well in front of my students? Do I not a story book? What is object over here? A story book. सिंगुलर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इस स्टार्ट में आ जाएगा. इज, तो कलर हर दफा चेंज करना पड़ेगा. इज अ स्टोरी बुक. अब नोट आ गया इसमें. अब आप कहोगे नोट कहाँ पे लगाना? भाई नोट अपनी जगह पर ही रहेगा, सिर्फ इज जो है जो हेल्पिंग हो वो स्टार्ट में चला जाता है. इज अ स्टोरी बुक नॉट. रीड फर्स्ट फॉर्म है और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म रेड होती है. स्पेलिंग रीड वाले होते हैं लेकिन इसको अपने पढ़ना क्या है? रेड. इज अ स्टोरी बुक नॉट रेड वेल बाय. क्या कौन काम कर रहा है? मैं कर रही हूँ तो बाय मी हो जाएगा. बाय मी. इज अ स्टोरी बुक नॉट रेड वेल बाय मी इन फ्रंट ऑफ माई स्टूडेंट्स. अब ये आपके लिए भी है कि मैं सही बता रही हूँ नहीं बता रही, ठीक है, अलॉन्ग विद क्वेश्चन मार्क. ये नहीं भूलना आपने, ठीक है. ये कुछ सेंटेंसेस थे आपकी प्रैक्टिस के लिए. और मुझे बताइएगा वीडियो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया या नहीं, इसका पैसे समझ में आया है नहीं अच्छे से. वक्तन फ़वक्तन मैं आपके साथ इसके कुछ सेंटेंसेस जो वो शेयर करती रहूँगी. और वैसे हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव करेंगे. फिर वो देखेंगे कि हम इंडेफिनिट की सीरीज़ पहले करते हैं या प्रेजेंट की सीरीज़ कंप्लीट करते हैं. होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. डू सपोर्ट मी, लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बहुत उम्मीद से मैंने ये चैनल दोबारा से स्टार्ट किया है. पहले मैंने छोड़ दिया था कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए. आई नीड योर सपोर्ट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़.